جو داندلی کی انتہا کی گئی ہے، اس کی تاریخ آپ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھ سکتے. شاید فوجی آمیروں کی حکومتوں میں بھی ایسے الیکشن نہیں کرائے گئے ہوں گے جیسے الیکشنز اس دفعہ کرائے گئے ہیں. بھائیوں، اس الیکشنز میں پری پول ریگنگ جو کی گئی ہے، پوسٹ پول ریگنگ جو کی گئی ہے، اس کی کچھ مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب الکا بندیاں بنائی جا رہی تھی، جن الکا بندیوں پہ یہاں پہ الیکشنز کرائے گئے تھے، وہ الکا بندیاں 2018 میں چیلنج کیے گئے تھے. ہائی کورٹ کی طرف سے یہ الکا بندیاں ختم کی گئی تھی اور اس پہ توہین عدالت بھی لگی تھی الیکشن کمیشن کو. پھر بھی یہ الکا بندیاں بحال کی گئیں، اسے بنایا گیا، اور یہ پہلا سٹیپ تھا پری پول ریگنگ. اس کے بعد جو ووٹر لسٹ بنائی گئی تھی، لوگوں کے جو ووٹس تھے وہ ایک علاقے سے دوسرے کانسٹیٹوئنسی میں تبدیل کیے گئے تھے. جو پولنگ عملہ لگایا گیا تھا، وہ پولنگ عملے جو لگائے گئے تھے سب جانتے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں. کس نے لگائے، کیسے لگائے، اور کیسے اس کی بولیاں لگ رہی تھی کہ اتنے پیسے آپ دیں، آپ کی پولنگ میں ہم عملہ لگا کے دیں گے. اسی طرح راتوں رات الیکشن سے پہلے پولنگ سکیمز چینج کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پری پول ریگنگ میں آتی ہیں. بھائیوں، بات ایسی ہے کہ ہمارے ساتھ جو داندلی کی گئی ہے اس پورے صوبے میں، اس کی شروعات اس دن سے ہوئی جب میں نے بتایا کہ الکا بندیاں تبدیل کی گئی تھی. ہم نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیس دائر کیا تھا، پھر ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا تھا جو ہم جیت چکے تھے، پھر اس پہ سپریم کورٹ کی جانب سے اسے سٹے کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جو مداخلتیں شروع ہوئی تھی اس کی بنیاد یہاں سے رکھی گئی بدنیتی کی، جب ڈی سی کوئٹہ، جس نے کھلے عام ہمارے ایکس ایم پی اے ہمارے صوبائی صدر نصر اللہ خان زیرے صاحب کو یہ دھمکی دی تھی کہ آپ آنے والے الیکشنز میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی سیٹ جیتتے ہیں. جب الیکشن پروسیس شروع ہوا، ہمارے جو کاغذات نامزدگی، ہمارے اکثریت ممبرز کے جو کاغذات نامزدگی تھی امیدواروں کے، وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہم نے پیپر سبمٹ کرائے تھے، اس سے ڈاکومنٹس نکال کے چوری کر کے ہمارے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے تھے، جو واپس ہائی کورٹ نے بحال کر دیے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کے دن ہر جگہ پہ جو ہمارے مخالفین تھے، ان کے پریزائڈنگ آفیسرز اور نیچے کا جو عملہ ہوتا ہے، پولنگ عملہ جو ہوتا ہے، انہیں لگایا گیا تھا. الیکشن کے دن ہمارے سارے پولنگ سٹیشنز پہ، میں اگر انہیں 251 کی بات کروں یا پھر ہمارے باقی جو حلقے ہیں، ہمارے 265 اور 262، اگر ان کی میں بات کروں تو سارے پولنگ عملے ہمارے خلاف تھے. ہر ایک بیگ سے جب ہم کھول رہے تھے وہاں سے بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ غائب تھے. پر ہمارے ورکرز نے کافی حد تک کوشش کی کہ اس ریگنگ کو ہم روک سکیں. پھر ہوا یہ کہ NA 251 میں 36 گھنٹے تک جو رزلٹ DRO کلاسف اللہ کے پاس پڑا تھا، DC یاسر کے پاس، آپ کے پاس وہ کون سی جواز تھی کہ آپ نے NA 251 کا، جو آپ RO بھی نہیں ہے ان کے، RO کوئی اور ہے وہاں پہ، وہ ADC جوب ہے، آپ نے 36 گھنٹے یہ فارم 45 آپ نے روکے رکھے. آپ نے جو ووٹس ہے ان کو روکے رکھا. اس کے باوجود آپ پرسنلی
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से राब्ते में थे कि आप आए, हमें नया फॉर्म 45 बनाना है जो एक पोस्ट पोल रैगिंग होती है। हमारे पास काफी शवाहिद है इसके मुतल्लिक। उसके बाद जो हमारी 21,000 की लीड थी, जब डैशबोर्ड जो बनाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस डैशबोर्ड में जो फॉर्म 45 के मुताबिक आपने पोलिंग वाइज आपने डेटा सबमिट करना था, उसे ऐड करना था उसमें। जब आप डेटा ऐड कर रहे थे, जब आरओ डेटा ऐड कर रहा था, तो हमारे किसी भी नुमाइंदे को वहां पे जाने नहीं दिया गया। अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्म 45 के खिलाफ जाके उन्होंने हमारी 21,000 की जो लीड थी उसे कम करके 949 पे लाके खड़ा किया। इस दौरान जब ये अमल हो रहा था, हम वहां थे। इन्होंने सरकारी जो बैलेट है वो लेके गए डीसी जोब के रिहाइशगाह पे। 1 घंटा 1.5 घंटे बाद वापस ये अमल शुरू हुआ कि जो फॉर्म 45 का जो डेटा है उसे वापस फीड करना शुरू किया इन्होंने डैशबोर्ड में, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वेबसाइट बनाई गई थी। वहां पे भी हमने यही शोर मचाया कि आपने रिगिंग के लिए आप एडजस्ट कर रहे हैं कि इतनी लीड लेके आए जिस लीड को फिर हम बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट है उसमें हम धांधली करके एडजस्ट करके हम आपको हराएंगे। भाइयों, बात ऐसी है कि जो हमने डेटा जो हमने सबमिट किया पोस्टल बैलेट में, हमने 1625 एप्लीकेशन सबमिट कराए हैं, डाक के जरिए अप्लाई किए हमने। हमारे जो सरकारी हमारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने किए, जिसमें से हमें जो बैलेट पेपर्स मिले हैं वो 771 बैलेट पेपर्स हैं। 631 बैलेट पेपर्स के खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन और डीआरओस को, आरओ को हमने ईमेल भी किया है और हमने उन्हें बाय हैंड हमने एप्लीकेशन भी दिया है कि आपने हमारे 631 बैलेट पेपर्स मुखालिफ उम्मीदवार के एड्रेसों पे भेजा है, लिहाजा आप उन्हें कैंसिल करें। सरकारी जराये के मुताबिक, डीआरओ और आरओ के मुताबिक, उनका कहना है कि हमने 2900 के करीब बैलेट पेपर, सरकारी बैलेट पेपर्स इशू कराए हैं और हमें रिसीव हुए हैं। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन 2600-2700 के बीच में बैलेट पेपर्स लाए गए। उन बैलेट पेपर्स में जो हमारे 871 बैलेट पेपर्स थे जो हमारे पास, उसकी रिसीविंग पड़ी हुई है, सिंगल एक एक बैलेट की रिसीविंग हमारे पास पड़ी हुई है जो हमने डाकखाने में जमा कराई है। उसमें से 200 के करीब हमारे जो वो लिफाफे थे एनवेलप से वो खाली निकले, उनके सील्स तोड़े गए थे, वो खाली दिए गए थे। वहां पे उन्होंने निकाले कि ये तो खाली है। 266 के करीब हमारे बैलेट पेपर्स गायब थे। मजमूई तौर पे 466 पोस्टल बैलेट पेपर्स हमारे सिरे से गायब थे। हमें जो मिले हैं वो 405 बैलेट पेपर्स हैं। अगर हमें हमारे ये जो 871 बैलेट पेपर्स मिल जाते हैं तो जो लीड जो उन्होंने दी है वो 93 वोट की लीड से हमें
जबरदस्ती जो हराया गया है, वो लीड वो कवर नहीं कर पाते। भाइयों, इस इलेक्शंस में पहले की तो छोड़े, पोस्ट पोल, प्री पोल, सिर्फ इस रिजल्ट को, फॉर्म 45 को और इन तेलों को रोकने के लिए डीआरओ क्लासिफला को 50 करोड़ रुपए दिए गए। कल नहीं परसों रात को देखो, वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। कल नहीं परसों रात को इस क्वेटा शहर में एक उम्मीदवार साहब लोगों से कैश 10 करोड़ रुपए मांग रहे थे। हर जगह पे जानने वालों के पास गए थे कि हमें कैश पूरा करके दे, हम पोस्टल बैलेट पेपर खरीदने वाले हैं ताकि हम ये इलेक्शंस जीत जाएं। यही हाल आप देख लें सारे सूबे में, इस पूरे मुल्क में इलेक्शंस के साथ क्या किया गया है। ये इलेक्शंस कराए गए, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ना तो यहां पे इस्लाम है ना यहां पे जमहूरियत है। ये बदबख्ती है हमारी। या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा इन मुकद्दस लोगों की तरफ से एक एजाज मिलता है, हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा करते हैं। और इस दफा इन्होंने ये अनोखा काम किया है कि एक नई तर्ज की डिक्टेटरशिप, अमरियत इन्होंने दुनिया को मुतारिफ करा दी है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना करें, इनडायरेक्टली ऐसे मैंडेट लोगों को दे, ऐसे कैंडिडेट्स लेके आए जो आपका कहना माने। मंडियां लगाई गई है, हमें तो आप फिक्र होने लगी है कि इस मुल्क के मैंडेट को कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। इस मुल्क के मुआफिज बेच रहे हैं, ड्रग लॉर्ड्स, लैंड माफिया, स्मगलर्स, और ऐसे लोग इस मुल्क के मैंडेट को, फैसले को ये लोग खरीद रहे हैं। और खुदा ना खासा ऐसा दिन ना आ जाए, अगर 5-6 ज्यादा बोलियां लग जाए, 5-6 गुना ज्यादा बोलियां लग जाए, तो शायद किसी अरबी को, किसी चाइनीज को, किसी और मुल्क से किसी बंदे को लेके आएंगे और यहां से इलेक्शंस में उसे कामयाब करा देंगे। हल्का पीबी 38 में, 38 नहीं 45 में जिस बंदे ने 600 वोट लिए वो जीत गए। 41 में, 42 में जिस बंदे ने 1100 वोट लिए उसे 10,000 वोट दिए गए। अख्तर मेंगल साहब के मुकाबले में आपने किस तरह रिगिंग की है ये सब लोग जानते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक बंदा इस मुल्क को कैसे चला सकता है। 24 करोड़ आवाम, 12 करोड़ वोटर्स में ये शऊर नहीं है। यहां पे स्कॉलर्स हैं, यहां पे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, यहां पे प्रोफेशनल लोग हैं, वो ये फैसला नहीं कर सकते कि इस मुल्क का मुस्तकबिल किसके हाथ में है। इस मुल्क को चलाने के लिए हमें किसको नुमाइंदा बनाना चाहिए। बस एक इंसान इस मुल्क का फैसला सही कर सकता है कि मुझे पता है कि यह मुल्क कौन चला सकता है। आपने यहां इस सूबे में मंडी लगाई हुई थी, अब आप देख ले हर एक कैंडिडेट, अक्सरियत ये कहती है मैंने इतने पैसे दिए, मैंने इतने पैसे दिए, मैंने इतने पैसे दिए, मुझे हरा दिया गया। हम आपको याद होगा डबल शाह यहां पे वो हुआ करता था, पैसे लेके एक को जिता के 5 के पैसे हड़प करके ले गया। अब इनसे कौन पूछ सकता है कि आपने क्या किए। अगर ये हाल इस मुल्क का रहा तो 71 में, 70 में हम देख चुके हैं कि आपने इस मुल्क का क्या हाल किया। हम मार्शाल्लाह में देख सकते हैं, पहली मार्शाल्लाह में, दूसरी मार्शाल्लाह में, तीसरी मार्शाल्लाह में, चौथी मार्शाल्लाह में, हम 2018 में भी देख चुके हैं। अब इस मुल्क का आपने क्या हशर किया। हर एक जब बरसर इक्तदार आता है तो वो ये समझता है कि मैं इस दफा कुछ नया करूंगा, मैं इस दफा इस आवाम के मैंडेट के साथ कुछ ऐसा करूंगा
कि आवाम को कुछ भी समझ नहीं आएगी, मैं इस मुल्क के साथ ऐसा करूंगा, जो मैं चाहूंगा वो इस मुल्क में होगा। आप सबको पता है कि आप एक मूवी है द डिक्टेटर, उसमें एक डिक्टेटर होता है, वो इलेक्शन कराता है दुनिया को दिखाने के लिए। इलेक्शन के दिन जहां पे उसके मुखालिफ पोलिंग बूथ पे लोग खड़े होते हैं, वहां से एक फौजी टैंक लेके आता है और लोग वहां से हट के इसके पोलिंग बूथ पे आ जाते हैं। और यही हाल इस मुल्क में हो रहा है। इलेक्शंस तो आपने कराए, दिखाया तो आपने है कि हमने इलेक्शंस कराए, पर आप इस इलेक्शंस में कामयाब नहीं हुए हैं। आपने 12 करोड़, या मैं कह सकता हूं 12 करोड़ आवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। आपने गद्दारी की है इस मुल्क के साथ। भाइयों, हम ये समझते हैं कि इसके संगीन नताइज होंगे। पहला नतीजा ये होगा, इसलिए कराए जा रहे हैं कि इस सूबे में पश्तून बेल्ट में ये चाहते हैं कि फिर एक दफा एक जंग लाई जाए, फिर यहां पे पश्तूनों का खून बहाया जाए। और दूसरा, ये लोग ये करना चाहते हैं कि 18वीं तरमीम को वापस रिवोक करें, उसे खत्म करें। हम देख चुके हैं यहां पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे थे, वो इलेक्शन जीत गए। मुझे ये कहा गया, मुखालिफ पार्टी के लोगों ने मुझे